Hi everyone. Hope you all are doing great. Take a second right now. Look to your left. Now look to your right. What do you see? Maybe you see a colorful curtain, or a toy, or your favorite water bottle. We use our eyes so much, don't we? But today we are going to explore something magical. What would happen if we can't use our eyes? Have you ever thought about that? Welcome you all to No Syllabus, and today's chapter is from your Mridang textbook, Seeing Without Seeing. So that is the name of the chapter. We are going to meet a girl named Anshangla. She's just like you. But today, she's going to learn a secret about how our hearts and our other senses help us see the world. Are you ready for the adventure? So let's go. Before we start, let's look at our map. First, we'll hear Anshangla's story. Then, we are going to discover or unlock some new words or the magic words and learn their meanings. We'll do a super fun senses challenge. And finally, what are we going to learn? The secret to being a super friend. You are going to learn to be a friend. So this is our agenda for the day. So I hope you all are excited so that we may begin our story. So students, this is our story. Let's get into our story. Little Anshangla walking home from school. Usually she is bubbly, but today she is very quiet. She puts her bag down and doesn't say a word. As you can see in the picture, her mother is saying, Anshangla, you are very quiet today. Did anything happen in the school? So you can see she is, कैसी लग रही है वो? She is very quiet today. Anshangla explains, वो अपनी मम्मी को क्या बता रही है? That a new boy joined her class, as you can see in the picture over here. Okay? He sits at the front desk and wears black glasses because he cannot see. वो देख नहीं सकता है. Anshangla is worried. वो परेशान है. She wonders. वो सोचती है how will he do things? वो अपने सारे काम वो कैसे करेगा? इसलिए जो ये गर्ल है Anshangla, वो परेशान है, वो worried है. ओके? तो this is the new boy जो उनकी क्लास में आया है. To help her understand, Ava suggests a game. She ties a scarf over Anshangla's eyes. Now Anshangla is in the same world as the new boy. She can't see anything. Let's see how she sees without her eyes. तो as you can see in the picture, जो Anshangla की मदर है उसने क्या करा? उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी. She ties a scarf. तो Anshangla अब कुछ भी देख नहीं सकती है. वो बोल रही है I can't see. ठीक है? She can't see anything. So now we have to see that कि without her eyes, how does she identify the things? वो चीजों को कैसे पहचानती है? First, Ava holds up something. Anshangla can't see. So she reaches out. She touches it. It is something soft. A flower. As you can see, उसकी mother उसके सामने क्या लेके आ रही है? एक flower. वो उसको touch कर रही है. Okay? तो it is something soft. Okay? It is something soft. A flower. But which flower? कौन सा flower? She leans forward and sniffs it. Sniffing का मतलब है उसको सूंघना, है ना? उसको smell करना. It is a rose. She cries out with joy.
उसकी आंखों पे पट्टी है, बट वो उसको स्मेल करके पता लगाती है कि वो रोज फ्लावर है. ठीक है. शी क्राइज आउट विथ जॉय. तो शी इज यूजिंग हर टच, उसको टच कर रही है, एंड शी इज यूजिंग हर स्मेल. तो हैंड से वो टच कर रही है, नोज से वो स्मेल कर रही है, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी है टू आइडेंटिफाई कि वो क्या ऑब्जेक्ट है, वो एक फ्लावर है. और वो बहुत खुश हो जाती है जब वो पहचान लेती है कि दिस इज अ रोज फ्लावर. नेक्स्ट, आवा पिक्स अप अ स्मॉल बेल एंड शेक्स इट. ठीक है, एक बेल ली उसकी मदर ने और उसको शेक करा, ट्रिन 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 ऐसे करा. Anshangla doesn't need her eyes for this one. She identifies it immediately. Immediately मतलब जल्दी से वो पता लगा लेती है कि वो क्या चीज है. She identifies it immediately by its musical sound. She uses her sense of hearing. यहाँ पे उसने अपने ears को यूज करा है ना. ears से हम सुन सकते हैं. So ears are for hearing. So ट्रिन ट्रिन साउंड उसने पहचान ली. फाइनली आवा गिव्स हर अ ग्लास. Anshangla touches it and knows it's a glass of liquid. But is it water? क्या वो water है? She dips a finger. वो उसमें अपनी finger डाल रही है. Then tastes it. Oh, it is the orange juice. She says, laughing. She used her sense of taste. तो यहाँ पे उसने क्या यूज करा? अपनी टंग, है ना. पहले उसने अपनी फिंगर डाली टच करने के लिए, बट उससे उसे नहीं पता चला कि वो वाटर है या कुछ और है. बट जब उसने टेस्ट करा उसको, ठीक है, फिंगर से जब उसने उसको अंदर लेके टेस्ट करा, या अगर फॉर एग्जाम्पल उसने ड्रिंक भी करा तो उसे उसका टेस्ट पता चला. तो टेस्ट के लिए क्या यूज हो रहा है? टंग. तो उसे पता चल गया कि दैट इज अ ऑरेंज जूस. आई होप यू आर एंजॉयिंग द स्टोरी. आवा रिमूव्स द स्कार्फ. Anshangla is so happy to see her mother again. अब उसकी मदर ने जो उसके आईज पे स्कार्फ बांधा था, पट्टी बांधी थी, वो उसने रिमूव कर दी और फिर वो अपनी मदर के पास चली जाती है. ठीक है. She learned something very important. क्या सीखा उसने इस स्टोरी से? Ava explains that if a child cannot see, there are other ways of finding out things. तो जो बच्चा देख नहीं सकता वो बाकी अपने सेंसेस से चीजों को पहचान सकता है. ठीक है. इवन विदाउट हर आईज, उसकी आईज पे स्कार्फ था, then also she was able to identify the flower, the bell and the juice. तो उसने क्या यूज करा? अपने बैकअप कैमराज यूज करे, मतलब कि उसने यूज करी अपनी सेंसेस. She tells Anshangla while the new boy might face some difficulties. उसकी मदर ने उसको समझाया, ठीक है, कि जो नया बॉय आया है क्लास में उसे कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी. ठीक है. They should be all his friends. बाकी क्लास के सब बच्चों को उसके दोस्तों की तरह उसकी हेल्प करनी है. And Anshangla agrees with a big smile. उसने अपनी मम्मी की बात से एग्री किया, है ना, सहमति अपनी जताई कि हाँ, जैसे मम्मी बता रही है कि हम सब उसके फ्रेंड्स की तरह एक्ट करेंगे. Just like Anshangla, we can help our friends by understanding how they see the world differently. तो हमें एक दोस्तों की तरह अपने फ्रेंड्स की मदद करनी है. ठीक है. जैसे उसकी मदर ने उसको टीच करा, तो we can help our friends. So children, अब हम देखते हैं यहाँ पे इस स्लाइड में हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं. ठीक है. So to see without our eyes, we need other senses. जिनके पास आईज नहीं है, जो आईज को यूज नहीं कर सकते, जो डिसेबल्ड हैं, वो अपनी बाकी सारी सेंसेस को यूज कर सकते हैं. तो हमारे बाकी सारे सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं? लाइक आर ईयर्स. ईयर्स क्या करते हैं?
ये सारी ध्वनि जो भी साउंड आती है, वाइब्रेशंस आती हैं, उनको कैच करते हैं। जैसे अभी हमने स्टोरी में देखा कि ट्रिन ट्रिन की साउंड से इस गर्ल ने आइडेंटिफाई करा कि वो बेल की साउंड है। ठीक है, सिमिलरली हम बात कर सकते हैं हमारी स्किन। बाय टचिंग, किसी चीज को टच करके हम पता कर सकते हैं कि वो चीज सॉफ्ट है या हार्ड है ना, वो चीज कैसी है। जैसे स्टोरी में ऑनशांगला ने फ्लावर को टच करके आइडेंटिफाई करा कि ये तो कोई सॉफ्ट चीज है, ये एक फ्लावर है। सिमिलरली आवर नोज, है ना, नोज जो भी हमारे सराउंडिंग में है ना, वो फ्रेग्रेंस, वो स्मेल कैच करता है कि अच्छा खाना बना है, यमी फूड है, कहीं से गंदी स्मेल आ रही है ना, इट इज वेरी डिस्गस्टिंग स्मेल। तो नोज जो है, सारे जो सराउंडिंग्स में जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इन द एयर, इट इज helping us to smell everything in our surrounding. Similarly, हमारी टंग में होते हैं टेस्ट बर्ड्स, है ना, जो आपको चीजों का फ्लेवर बताते हैं। दे सेंड द सिग्नल टू योर ब्रेन, जिससे कि आपको पता चलता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द फूड। फूड स्वीट है, मीठा है, नमकीन है, सॉल्टी है, खट्टा है, सार है या कड़वा है, बिटर है। सो टंग में होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स। But children, other than that, our tongue helps us in so many ways. बहुत सारी चीजों में टंग हमें हेल्प करती है, जैसे कि it pushes food to your teeth for chewing and helping you swallow the food. Your tongue also works like a built-in toothbrush. एक टूथब्रश की तरह भी आपकी टंग काम करती है। After you eat your food, जब आप खाना खाते हो तो टंग हेल्प करती है। It sweeps your teeth to clean off the leftover crumbs in your mouth. जो खाना बचा रह जाता है उसको क्लीन करने में भी टंग हेल्प करती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है टंग का, दैट इज इट इज हेल्पिंग अस स्पीक, हमें बोलने में मदद करती है। इट हेल्प्स टू टैप्स योर टीथ एंड द रूफ ऑफ योर माउथ टू हेल्प यू से वर्ड्स। आप प्रोनाउंस कैसे करते हो वर्ड्स, जैसे मैंने बोलना है हेलो या ला ला ला, तो इसमें भी मेरी टंग जो है हेल्प करती है। सो दोज आर द अदर इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द टंग। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट द सेंसरी रिले रेस। अब आपने क्या सोचना है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, समझो कि वो एक रेस की टीम का हिस्सा है, एक रिले रेस की टीम का हिस्सा है। जब फॉर एग्जाम्पल आपकी आईज है ना, जब वो टायर्ड हैं, वो भाग नहीं सकती, आपने समझना है वो सब पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं। सो व्हेन द आई रनर इज टायर्ड और कैन नॉट रन, दे पास द बैटन टू द ईयर रनर और द हैंड रनर। इवन इफ वन रनर इज आउट, दिस टीम फिर भी भागती जाती है और वो जो है एंड तक भागते भागते फिनिश लाइन तक पहुंच जाती है। ठीक है, इस तरह से समझो, फॉर एग्जाम्पल आपकी वाटर बॉटल है, ठीक है, और अंधेरा रखा है, लाइट्स ऑफ है, तभी भी आप अंधेरे में भी आप अपना हाथ ऐसे करके पता कर लेते हो कि ये मेरी वाटर बॉटल है। ठीक है, इन द डार्क ऑल्सो यू कैन रीच आउट योर हैंड, यू कैन टच एंड आप उसकी शेप देख के पता कर सकते हो दैट दिस इज माई वाटर बॉटल। तो इसी तरह से ये जो सारे आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, दे हेल्प द टीम फिनिश द रेस। इजंट दैट अमेजिंग? All these sense organs are very, very helpful for us. So, children, I hope you understood this story and now it is time for our magic words. ठीक है, जो भी हम नए वर्ड सीख रहे हैं जिनसे हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो रही है, हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो रही है, तो let us learn 4 important words: quiet, sniff, blink and difficulties. तो जो फर्स्ट वर्ड है क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। जैसे आपको क्लास में बोला जाता है बी क्वाइट या कीप क्वाइट, मतलब ज्यादा शोर नहीं मचाना। ओके, मेकिंग वेरी लिटिल नॉइज, बी क्वाइट। ओके, QUIET, क्वाइट। स्निफ, SNIFF, स्निफ। तो स्निफ का मतलब क्या है? टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्मेल। तो आपका कौन सा सेंस ऑर्गन आपको हेल्प करता है स्निफ करने में? आपका नोज। आई लाइक टू स्निफ फ्रेश फ्लावर्स इन द गार्डन। तो
तो गार्डन में फ्लावर्स की सेंट आती है, अच्छी सी खुशबू आती है, तो उसके लिए आपका विच ऑर्गन इज हेल्पिंग यू? योर नोज इज हेल्पिंग यू. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ब्लिंक. ब्लिंक का मतलब है ओपन शट, ओपन शट. अपनी आईज को खोलो और बंद करो, खोलो और बंद करो. ठीक है. When the light is bright, we blink our eyes. आंखें झपकती है ना, जब तेज रोशनी आंखों पे पड़ रही होती है तो आंखें आपकी ऑटोमेटिकली झपकने लगती है. सो ब्लिंक का मतलब है रैपिडली शटिंग एंड ओपनिंग योर आईज. डिफिकल्ट या डिफिकल्टीज है ना, डिफिकल्ट वर्ड से बनता है डिफिकल्टीज. मतलब क्या है? मुश्किल चीजें. ठीक है. थिंग्स दैट आर अ बिट हार्ड टू डू. ठीक है. वी ऑल फेस डिफिकल्टीज बट दैट्स ओके बिकॉज वी हैव फ्रेंड्स टू हेल्प अस. है ना, हम सब मुश्किलें फेस करते हैं, पर जब हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए दोस्त होते हैं तो हम उन डिफिकल्टीज को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. सो वी कैन हेल्प फ्रेंड्स हु फेस डिफिकल्टीज. डिफिकल्टीज का मतलब क्या समझाया मैंने? मुश्किलें. ओके. नाउ चिल्ड्रन, अब हम यहाँ पे पिक्चर में क्या देख रहे हैं? दो फ्रेंड्स हैं, आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. तो आवा टोल्ड ओनशांगला समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. क्या चीज बताई थी ओनशांगला की मॉम ने उसको? दैट वी शुड बी ऑल फ्रेंड्स. है ना, वी शुड बी फ्रेंड्स. और उसे स्पेसिफिकली स्टोरी में क्या बोला था? जो न्यू बॉय आया था क्लास में, उसके साथ वी शुड ऑल बी फ्रेंड्स विद द न्यू बॉय. तो people who are differently abled might use tools like, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो ब्रेल. इसमें क्या है? छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं. तो डॉट्स को टच करके डॉट्स दे फील टू रीड. और या इस तरह की स्टिक ऐसे लोग यूज करते हैं जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते. सो दिस इज अ स्टिक जिसे हम एक केन बोल सकते हैं. सो बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ दे सी द वर्ल्ड through sound and touch, we can be kinder friends and make sure no one feels left out. तो हमें ऐसे लोगों की, disabled लोगों की हमें help करनी चाहिए. We don't need to be sorry for them, but we need to be kind, we need to be considerate, we need to be helpful, और हमें उनकी मदद करनी है. Children, now let's do a quick exercise. ठीक है. लेट्स लुक एट हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर प्रेशियस आईज. हमारी आईज हमारे लिए क्या क्या नहीं करती है ना. दे डू सो मेनी थिंग्स फॉर अस. ओके. सो वी हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ आवर आईज. वेन एवर यू आर रीडिंग यू हैव टू सिट स्ट्रेट. और जब भी आप रीडिंग कर रहे हो दे शुड बी प्रॉपर लाइट इन योर रूम. ओके. सो रीडिंग इन गुड लाइट, ये एक अच्छी आदत है. देन वील से टिक. यस, हमने यहाँ पे टिक कर दिया. ठीक है. वी शुड बी सिटिंग स्ट्रेट वाइल रीडिंग एंड वी शुड बी रीडिंग इन गुड लाइट. देन ईटिंग कैरेट्स. क्या कैरेट्स? क्या बोलते हैं कैरेट को हिंदी में? गाजर. क्या कैरेट्स खाना एक अच्छी आदत है? यस, वी विल डू अ टिक मार्क बिकॉज कैरेट्स आर वेरी गुड इन फॉर आवर आईज. ठीक है. तो कैरेट्स आर लाइक सुपर फूड फॉर योर आईज. है ना. कैरेट्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारी आईज को चाहिए होते हैं. सो वी विल डू अ टिक. देन स्टेयरिंग एट द सन. ठीक है. सीधा सूरज की तरफ देखना. इज दैट अ गुड, समथिंग गुड? नो, दैट इज अ बैड हैबिट. हम इसको क्रॉस कर देंगे. ठीक है. वी कैन नॉट डायरेक्टली सी एट द सन. ओके. दैट इज नॉट गुड फॉर आवर आईज. हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है. वॉचिंग टीवी बहुत पास से. क्या टीवी को आपको बहुत पास से देखना चाहिए बच्चों? नो, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर आईज. तो हम यहाँ पे एक क्रॉस कर देंगे. हमारी आईज खराब हो जाएंगी अगर हम टीवी पास से देखेंगे. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर यू इज, ओके, यू कैन सी हियर द पिक्चर. ओके. यहाँ पे आप पिक्चर में देखो. लुक अप, look down, look left, look right. Okay? Eyes की मूवमेंट करनी है. Keep your head still. Look up मतलब ऊपर देखना है, छत की तरफ, सीलिंग की तरफ. Look down मतलब कि नीचे देखना है, टोज की तरफ. ठीक है. Then look to the
लेफ्ट साइड, लेफ्ट देखना है, देन यू हैव टू लुक टू द राइट साइड. नाउ ब्लिंक 3 times. 1 2 3 अपनी आईज झपकानी है. ठीक है, अपनी आईज को आपने ब्लिंक करना है जल्दी जल्दी. तो ये सारी एक्टिविटीज यू हैव टू डू, एंड ऐसा करने से आपकी जो आईज की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि आईज की मूवमेंट हो रही है ना. दिस इज सम लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग. तो ऊपर देखना है, नीचे देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, और आईज को क्विकली ब्लिंक करना है. दीज ऑल विल कीप योर आईज मसल्स स्ट्रांग. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आज हमने जो ये स्टोरी पढ़ी है ऑनशांगला के बारे में. सो ऑनशांगला, द कैरेक्टर इन द स्टोरी, शी लर्न्ड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. क्या सीखा? That we don't need to feel sorry for people who see differently. We just need to be kind. है ना. अगर हमारे क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, तो हमें उनके लिए सॉरी फील नहीं करना है, बिकॉज भगवान ने सब बच्चों को अलग अलग तरह से बनाया है. बट हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, और हमें उनके साथ जो ट्रीटमेंट है, जो व्यवहार है, वो अच्छे से करना चाहिए. So instead of thinking, oh, they can't do this, we should think, हमें क्या सोचना है, how can I be their helping hand? मैं ऐसे बच्चों की, ऐसे अपने फ्रेंड्स की हेल्प कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. Imagine how brave that new boy is. जो ऑनशांगला की क्लास में जो नया बॉय आया हुआ कितना ब्रेव है. His सुपर पावर, उसकी सुपर पावर क्या है? वो सुन सकता है, वो टच कर सकता है, और उसी से वो अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है. सो चिल्ड्रन, बिफोर आई गो, आई हैव अ स्मॉल टास्क फॉर यू. ठीक है, आस्क योर मदर व्हाट यू कॉल मदर इन योर मदर टंग. आप अपनी मम्मी को, मदर को अपनी मदर टंग में क्या बोलते हो? जैसे कई बच्चे बोलते हैं मम्मी, कहीं बोलते हैं मॉम, कहीं बोलते हैं माँ, कोई बच्चा बोलता है अम्मी, है ना. ऑनशांगला सेज आवा. ओके, तो हर बच्चा अपनी मम्मी को अलग अलग नाम से मदर टंग में कॉल करता है. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्ले द स्कार्फ गेम विद योर पेरेंट्स टुनाइट. सी, हियर इज अ स्कार्फ. यू हैव टू सी इफ यू कैन गेस व्हाट्स इन देयर हैंड विदाउट लुकिंग. तो स्कार्फ टाई कर देंगी आपकी मम्मी आपकी आईज पे, एंड देन यू हैव टू लुक इन द सराउंडिंग. जो भी चीज आपको मिल रही है, यू हैव टू गेस कि उनके हाथ में क्या है. यू आर नॉट यूजिंग योर आईज, क्योंकि आपकी आईज ब्लाइंड फोल्डेड है, उस पे पट्टी बंधी हुई है. सो आई होप यू विल एंजॉय दिस गेम टुडे. सो चिल्ड्रन, व्हाट हैव वी लर्न टुडे? क्या क्या सीखा है हमने? आवर नोज, our ears, our hands, all these are amazing backup cameras. हमें अपनी eyes को protect करना है. We must protect our eyes by not staring at the sun directly or sitting too close to the TV. I hope आप इस बात को ध्यान में रखेंगे. आप बहुत टीवी के पास बैठ के टीवी वॉच नहीं करेंगे. Okay? So, next time we are going to go places. We'll see how to travel from the ground to the sky. Till then, what you have to do, you have to download the worksheet from the link below and do the activities with people around you. आपके साथ अपने पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप मिलके जो भी वर्कशीट में मेंशन्ड एक्टिविटीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज आप करेंगे. You will enjoy doing those activities. And until next time, keep sniffing. Keep exploring. Bye-bye all of you. Take care.